Now, No, sir. okay, wait. Yes. हेडिंग दिख रहा है पाइप सिस्टम का? No, sir. The screen is not visible. अगेन स्क्रीन, वेट. Yes, sir. Now it's visible. Okay. Okay. Pipe system. Again, it is the same concept like time and work. Okay. So write question number one. Question number one. Two taps. Two taps. A and B. Two taps. A and B. Fill a tank. Fill a tank in 48 minutes and say 36 minutes respectively. Next, if both the taps open alternately, if both the taps open alternately work open करते हैं अपन, then then find find after how much time, find after how much time tank will be filled, tank will be completely filled. Okay. So individually 48 minutes and 36 minutes. Now both the taps are open alternately. That means for first minute tap A will work, for second minute tap B will work, like this. Or they may mention here starting with A tap or starting with B tap. So you assume we are starting with A tap. Okay. So like this, total number of minutes required to fill the complete tank. Okay. So same procedure, find the LCM of 48 and 36. You will get the capacity of tank. Find the LCM of 48 and 36. Find capacity of tank. Not actual capacity, it is least capacity. Okay. So this is least capacity, not actual capacity. Find least capacity of tank. Find LCM. Yes, Saloniki. What is LCM of 48 and 36? बोलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ. What is LCM of 46, 48 and 36? 12 से डिवाइड करो.
because both numbers are divisible by 12. 12 4s are 12 3s are. Finally 3 से divide करो, 3 1s are 4 as it is, 4 1s are 4. So what is least capacity? 12 into 3 into 4. Yes. 144. What is least capacity? Correct. So you can assume capacity of tank is 144 liter, and this is not actual capacity. It may be 144 liter tank, or you can say multiple of 144 liter. So you assume this is least capacity. Actually, LCM means least capacity. Second step as it is, find efficiency of each tap, because taps are working here instead of man. So find efficiency of tank, efficiency of tap. Sorry, taps means pipes. Find efficiency of taps. This is tank, this is tap. Find efficiency. What is efficiency of A's tap? A's efficiency. 144 divided by Correct. 48. 144 divided by 48. So I will get this number. Maths. Simply interchange the value. You will get values here. 3 liter पर मिनट. 1 मिनट में ना 3 लीटर क्या करता है, वो फिल करता है. अगर एम्प्टी होता तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता, यहाँ पे प्लस है. प्लस क्योंकि फिल कर रहे हैं. बी की इफिशियंसी फिर से बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव इफिशियंसी में वर्क कर रहा है या निगेटिव इफिशियंसी में. सो अगेन बोथ टैप्स आर फिलिंग द टैंक्स, दैट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव इफिशियंसी. सो 144 अपॉन 36 कितना आएगा बोलो? 144 अपॉन 36. यस गाइस, करेक्ट. सो एक मिनट में, क्योंकि यहाँ पे मिनट है, 1 मिनट में ना 4 लीटर वाटर क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा है. इफिशियंसी का मतलब पर आवर, पर मिनट, पर डे वर्क होता है. तो इफिशियंसी का मतलब हमेशा पर मिनट या पर आवर होगा. यहाँ पे मिनट करके मिनट आया. सो 1 मिनट में 3 लीटर वाटर फिल कर रहा है, और ये 1 मिनट में 4 लीटर वाटर फिल कर रहा है. ये उनकी इफिशियंसी है, और मेरा टारगेट है 144 लीटर फिल करना. लेकिन ये एक साथ काम नहीं कर रहे. अब वो अगर एक साथ बोल दिया होता तो मैं इन दोनों का एडिशन कर देता. 4 + 3 7 लीटर 1 मिनट में क्या होगा, फिल होगा. और 7 से मैं सीधा इसको डिवाइड कर देता 144/7. तो दोनों एक साथ काम कर रहे होते तो 144/7 मेरा आंसर आ जाता. लेकिन यहाँ पे बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटली बोला है. तो अल्टरनेटली कैसे सॉल्व करेंगे आप? अल्टरनेटली मतलब स्टार्टिंग विथ ए और स्टार्टिंग विथ बी. अभी यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए स्टार्ट करेंगे, मतलब ए पहले मिनट में आएगा, बाद में बी आएगा. तो इस हिसाब से कितना टाइम लगेगा. अगर आपको यहाँ पे ऐसे पूछा होता कि इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो आपका आंसर क्या आया होता बोलो? साइमल्टेनियसली अगर बोला होता तो आंसर क्या आता? साइमल्टेनियसली बोला होता तो, साइमल्टेनियसली बोला होता तो आंसर क्या आएगा? यस, साइमल्टेनियसली एक साथ अगर खुले होंगे दोनों की दोनों. तो 144 मेरा टारगेट है. और 144 अपॉन 7. Plus 48 plus 7. तो 144 अपॉन 7 मिनट, ये मेरा आंसर आ जाता अगर साइमल्टेनियसली बोला होता तो. लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं है, यहाँ पे अल्टरनेटली वर्क करना है. 1 मिनट एक टैप ओपन. तो बोला आंसर क्या आएगा? अब कैसे करेंगे? सो दिस इज अगेन हिट एंड ड्राइव. क्या आएगा आंसर? फर्स्ट मिनट में कौन आएगा? 1 मिनट के बाद पहले ए टैप आएगा. ए टैप की इफिशियंसी क्या है बोलो? 3 liters. ठीक है, तो वो 3 लीटर क्या करेगा? फिल करेगा, फिर चला जाएगा. सेकंड मिनट में कौन आएगा? सेकंड मिनट में B. बी आएगा. उसकी इफिशियंसी क्या है? 4 लीटर है. तो वो 4 लीटर फिल करेगा और चला जाएगा. फिर आपको पता चला कि यहाँ पे पैटर्न है. किसका पैटर्न है? 3-4-3-4 का पैटर्न है. यहाँ पे फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा. ये पैटर्न चलेगा. तो एक बार आपको पैटर्न समझ में आया और टारगेट आपको 144 ये समझ में है, तो क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो कितने मिनट कंप्लीट हो गए. 3 कैसे आएगा? ये 1 मिनट है, ये सेकंड मिनट. 2 minutes. यस. सो इन 2 मिनट, 2 मिनट में ना मेरा कितना काम हो रहा है बोलो? 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 7 liters.
7 लीटर फिल हो गया मेरा 2 मिनट में। तो आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखना है कि यहाँ पे 7 का टेबल चलेगा और यहाँ पे 2 का टेबल चलेगा, ये आपको समझ में आया। तो मुझे 7 का टेबल लिखना है, कब तक लिखना है, जब तक 144 लीटर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा कि विच मल्टीपल ऑफ 7 विच मल्टीपल ऑफ 7 विच मल्टीपल ऑफ 7 इज क्लोजेस्ट टू 144, विच मल्टीपल ऑफ 7 इज क्लोजेस्ट टू 144। हाँ, तो आप क्या करेंगे, 144 को 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। 20.5। यस, पॉइंट में नहीं लेना, डेसिमल में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में नहीं बढ़ेगा। हाँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 2। सो 7 का 20th मल्टीपल क्या है ना, नजदीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मतलब 7 का टेबल लिखना है, तो मैं क्या करूंगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर। तो 20 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो 7 इंटू 20 कितना आया बोलो? 140। 140 आएगा, मतलब 140 लीटर तो भर गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इधर अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इधर भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने मिनट हो गए पूरे? 40 मिनट्स। हाँ, 40 मिनट तो हो गए। 40 मिनट में मेरा इतना काम हो गया, 140 लीटर हो गया। अब नेक्स्ट मिनट स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट मिनट कौन सा पर्सन आएगा बोलो? नेक्स्ट मिनट कौन सा पर्सन आएगा? हाँ, तो 3 लीटर वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे ना मतलब टोटल 144 है और 140 तो खत्म हो गए, तो यहाँ पे 41th मिनट होगा। 41th मिनट पे ये ऑड नंबर पे कौन आ रहा है? ऑड नंबर पे ए आ रहा है। 1 मिनट मतलब ऑड नंबर, और इवन नंबर पे बी आ रहा है, मतलब 41th मिनट पे ए आएगा। ए की भूख कितनी है बोलो? 3 लीटर की। वो 3 लीटर खत्म करेगा। यहाँ तक कितने 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 लीटर फिनिश हुए बोलो? कितने लीटर फिनिश हुए यहाँ तक? 41 लीटर। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे रिमेनिंग कितने लीटर है वो निकालूंगा। 144 में से 143 लीटर फिनिश हो गए, 1 लीटर बचा। अब जो बंदा आने वाला है ना, उसको ना 4 लीटर वाटर चाहिए, लेकिन बचा बहुत कम, मतलब उसकी भूख ज्यादा है। तो वो पूरा का पूरा 2 मिनट नहीं लेगा, 2 मिनट का कुछ तो फ्रैक्शन लेगा, 1 मिनट का कुछ तो फ्रैक्शन लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो 1 मिनट काम किसके ओर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? 1 मिनट का काम अब किसकी तरफ जा रहा है? बी। हाँ, बी की तरफ जा रहा है। लेकिन बी को चाहिए 4 लीटर, उसके पास है 1 लीटर, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए। सो 1/4, मतलब 1 मिनट पूरा नहीं लेगा, 1 मिनट का इतना टाइम लेगा वो, 1/4 मिनट लेगा। तो टोटल कितना मिनट हो गए? ये पहले के 41 मिनट और बाद में के ये बचा जितना 1 लीटर है, 1 लीटर को बी के पास जा रहा है, इसलिए मैंने बी से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, ये इतना मिनट। सो टोटल मेरे मिनट कितने आएंगे बोलो? 41 मिनट्स 3 सेकंड। 41 1/4 मिनट। 41 1/4 मिनट, ये मेरा रहेगा। ठीक है ना, समझो यहाँ पे ये उनकी इफिशियंसी तो आप निकालेंगे बाद में। पहले मिनट पे ए आ रहा है, 3 लीटर वाटर फिनिश कर रहा है, दूसरे मिनट पे बी आ रहा है, 4 लीटर वाटर फिनिश कर रहा है। दोनों 2 मिनट में 7 लीटर वाटर क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। दोनों पॉजिटिव है। तो 144 मेरा टारगेट है, तो मैं क्या करूंगा, 144 को 7 से डिवाइड करूंगा। डेसिमल में आंसर मत लो, क्योंकि यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं, टेबल कभी भी डेसिमल में नहीं होते। 7 का टेबल यहाँ पे, 2 का टेबल यहाँ पे। तो 144 को 7 से डिवाइड किया तो मेरा नियरेस्ट मल्टीपल आ गया 20 समथिंग। तो 20 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 20 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर आ गया। एक टेबल चला, कब तक सक्सेसफुल टेबल चला? 40 मिनट तक, 140 लीटर वाटर फिल हो गया। तो 41th में आएगा ए पर्सन, उसकी भूख है 3 लीटर, 3 लीटर फिनिश हो गया, मतलब टोटल 143 लीटर फिनिश हो गया। एक ही बचा खाली, और एक बचा हुआ बी के पास चल गया। तो कितना टाइम लगेगा? एक बचा है 4 के हिसाब से, तो 1/4, 1 4, जिसके पास जा रहा है उससे डिवाइड करना। 1 बचा है, बी के पास जा रहा है 4 टाइम, इतना टाइम हो गया। तो ये और ये दोनों का एडिशन कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। समझ में आ रहा अल्टरनेटली का कंसेप्ट? यस। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको हिट ट्रायल करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर हिट एंड ट्रायल ये वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो फिर ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा। एक और सॉल्व करो।
दोनों फील वाले हैं, दोनों फीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 40 मिनट एंड 50 मिनट, ठीक है। और अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद बी लिखो आप, स्टार्टिंग विद बी, बी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग विद बी। चलो सॉल्व करो। मैंने क्वेश्चन पेपर आपके देखे, ज्यादातर टाइम डिस्टेंस के पीएनसी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, नंबर सिस्टम पीएनसी। हाँ सर, ज्यादा टाइम डिस्टेंस के ज्यादा रहते हैं सर। हाँ तो टाइम डिस्टेंस ज्यादा है, ये टॉपिक होगा ना तो पहले पहले हम टाइम डिस्टेंस कवर करेंगे इसके बाद। ओके सर। एक 4 तारीख तक मैं बिजी हूँ थोड़ा, बाकी तो फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे मेरे, तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा आपका। कर लेंगे 306, ठीक है ना। सुबह थोड़ा आराम करो। यस सर। हाँ 3 से 6 तक चलूंगा फिर। ओके। Yes. चलो ये सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर। रब करो इसको। हाँ यस सर। यस। तो एलसीएम लगाओ, 40 और 50 का एलसीएम लगाओ इधर। एलसीएम से सॉल्व करो क्योंकि ज्यादातर फिर शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए एलसीएम लगाओ बस। फोर्टी 50 का एलसीएम कितना आया? इधर 10 क्यों लिया, क्योंकि दोनों को डिवाइड करता है, तभी बड़ा नंबर लेना है इधर। नहीं तो आप एक काम करो, 5 से डिवाइड करो। ये बड़ा नंबर तभी लेना जब वो दोनों को डिवाइड करता है, नहीं तो मत लो, नहीं तो सेकंड मल्टीपल आ जाएगा, कभी का थर्ड मल्टीपल आ जाता। लिस्ट चाहिए हमको मल्टीपल, इसलिए ना मैं भी यहाँ पे एक काम करूंगा, भले मेरे को पता है 5 से डिवाइड करूंगा, तो इधर आएगा 8, इधर आएगा 10, ठीक है। सो कैपेसिटी कितनी आ गई? हाँ 200 ना, 200 लीटर। ये मेरी एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 200 का टेबल कुछ भी हो सकता है, 220,000 लीटर, 40,000 लीटर, यही मेरा आंसर होगा हमेशा, इसके मल्टीपल में चलेगा आंसर। ये कम से कम कैपेसिटी है, लेकिन इसका टेबल अगर मैंने लिख दूं यहाँ पे 400, 600, 800, 1000, इसमें से कोई तो आंसर होगा कैपेसिटी एक्चुअल, ठीक है। चलो ये होने के बाद आप लिखना इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब हमेशा याद रखना पर यूनिट, पर मिनट का टाइम, पर मिनट का वर्क, 1 मिनट में किया जाने वाला वर्क, इफिशिएंसी। तो ए की इफिशिएंसी कितनी होगी? 200/40, 5। ये जब भी को प्राइम नंबर आते हैं ना तो इंटरचेंज होते, देखो इंटरचेंज होते को प्राइम, ये दो को प्राइम नंबर है, इंटरचेंज होते। बी 200/50, 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ क्या बोला है? बी। हाँ बी से स्टार्ट करना है, मतलब 4 से स्टार्ट करना है मेरी इफिशिएंसी। बोथ टैब्स आर ओपन, अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ बी। तो चलो बी से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो। इधर बी आएगा, बी 4 लीटर भर के चला जाएगा। फिर ए आएगा, ए 5 लीटर भर के चला जाएगा। इसका मतलब 2 मिनट में मेरे 9 लीटर फिनिश हो गए। लेकिन मुझे 9 का टेबल यहाँ पे लिखना है 200 मतलब या क्लोजेस्ट टू 200। तो क्या करेंगे हम, 200 को 9, हाँ 200 को 9 से डिवाइड करो। नेरेस्ट इंटीजर लिखना, ना कि डेसिमल, नेरेस्ट इंटीजर लिखो यहाँ पे। क्या आएगा? 22, ठीक है।
तो 22 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, 22 इधर भी 22 इधर भी। 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता बोलो, चलो नहीं आप बोलो। हम्म, 198 198 लीटर खत्म हो गया और इधर आ गए 44 मिनट। अब 45th मिनट पे कौन आएगा, बी आएगा, सही है ना, बी Yes. आएगा। और बी की भूख है ना ज्यादा है, चार रोटी चाहिए उसको, और मेरे पास तो रोटी 2 ही बचे, मतलब पूरा का पूरा वो मिनट नहीं लेगा, मिनट का कुछ तो फ्रैक्शन लेगा। तो कितने बचे यहाँ पे निकालो, रिमेनिंग कितना है, 200 में से 198 चले गए, 2 लीटर पानी बचा है और 2 लीटर चला जा रहा है बी के पास। तो मेरा आंसर आएगा 2/4, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है। अगर ये 4 से ज्यादा होता तो पूरा मिनट ले लेता हो, लेकिन 4 से कम है, मतलब फ्रैक्शन में लेगा वो, 1/2 मिनट। तो टोटल कितने मिनट लगेंगे, 44.5 मिनट, 44.5 मिनट ये हो सही। सो समझ में आया अल्टरनेटली मेथड। शायद ये मेथड टाइम एंड वर्क में भी बोल सकते हैं, ए एंड बी स्टार्टेड वर्क, दे वर्क अल्टरनेटली, ऐसा भी बोल सकते हैं जो, ठीक है। सो वो यही कंसेप्ट उधर भी लगा देना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दोनों फील्ड का है, ये दोनों फील्ड का है। अगर चलो मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता, इधर ना टैप ए फिलर है, टैप ए क्या है, फिलर है, एंड टैप बी क्या है, एम्प्टी करता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखते हैं। देखो यहाँ पे टैप ए फिल्स टैंक इन 30 मिनट, लिखो थोड़ा सा ये 30 मिनट, while टैप बी एम्प्टीज टैंक, एम्प्टी कर रहा है अभी इन 60 मिनट, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इसकी इफिशियंसी कम है, 30 मिनट ले रहा है, मतलब ये की इफिशियंसी ज्यादा है। तो इस हिसाब से इफ दे स्टार्ट alternately starting with A, तो टाइम निकालना है मुझे, in how much time tank will fill, ठीक है। चलो शॉर्टकट में लिखा, बस समझ जाओ। ए फिलर है अभी और बी एम्प्टी कर रहा है, अभी एक भर रहा है दूसरा एम्प्टी कर रहा है। अगर ये चलेगा तो क्या होगा, पहले ये कंसेप्ट बिल्डर है, बस क्वेश्चन जो भी चल रही है कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बाकी अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर इफिशियंसी एक, अगर वो फील कर रहा है तो इफिशियंसी प्लस होगी, अगर वो एम्प्टी कर रहा है तो इफिशियंसी माइनस चलेगी, इस हिसाब से। तो टाइम फील होगा या एम्प्टी होगा, तो फील ही होगा, क्योंकि बी ज्यादा टाइम ले रहा है एम्प्टी में, मतलब फिलर टाइम की इफिशियंसी ज्यादा। अगर ये उल्टा कर देता, मैं इधर 60 लेता इधर 30 लेता, मतलब एम्प्टी होता टैंक, फिल नहीं होता। चलो एलसीएम लगाओ, 30-60 का एलसीएम 60। हाँ 60 लीटर आएगा, 30 से सीधा डिवाइड किया, हाँ सर। यस। तो मेरी कैपेसिटी आ गई 60 लीटर की। चलो 60 लीटर मेरी कैपेसिटी, अब इफिशियंसी लगाओ, इफिशियंसी ऑफ ईच टैंक। ईच टैप इफिशियंसी लगाओ। तो ए, अभी ए यहाँ पे क्या करना, देखो अगर ए फिलर है तो ए के पास में ना प्लस वाला साइन दे देना, ठीक है। तो 60 को 30 से डिवाइड करो, ये ना 2 लीटर चल रहा है,
2 लीटर पानी भर रहा है यहाँ पे। और बी, बी क्या है बोलो यश? बी सर Empty। रिमूव कर रहा है। हाँ, निगेटिव वर्क है इसकी। तो यहाँ पे 60/60, तो ये ना 1 लीटर पानी 1 मिनट में क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ये 2 मिनट वाटर फिल कर रहा है। तो हाँ, तो ये उनकी इफिशियंसी है। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, अल्टरनेटली जगह अगर साइमल्टेनियसली वर्क करते तो क्या होता बोलो? साइमल्टेनियसली वर्क करते तो क्या होता? दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा? दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये 2 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर बाहर निकल रहा है, तो एक लीटर ही क्या होगा? 1 लीटर ही भरा जाएगा। ये अगर दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो 60 लीटर के लिए 60 मिनट लगेंगे, मतलब 1 घंटे में वो टैंक भरा जाएगा। ठीक है, 60 इधर सीधा डिवाइड करता मैं इसको, 60/1, 60 आंसर आएगा, 60 मिनट, लीटर लीटर कैंसिल होते, तो 1 घंटे में काम भरा जाएगा साइमल्टेनियसली होता। तो ये एक कैसे आया यश बोलो, ये एक कैसे आया? ये 2 - 1 सर। करेक्ट, हाँ, तो इस हिसाब से ये आया। बाद में अगर आपको अल्टरनेटली वर्क करना है तो बोलो क्या होता? अल्टरनेटली कितना टाइम लेता था? हाँ देखो, दोनों एकदम शांत निकालो, दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए, इस हिसाब से निकालो। सर 120। सही है, तो डबल टाइम लगेगा, एकदम करेक्ट। तो 2 मिनट में क्या हो रहा है, इन 2 मिनट ये 2 - 1 1 मिनट हो रहा है, 1 लीटर हो रहा है। तो कॉमन सेंस है, एक को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 60 से, तभी जाके ये 60 लीटर होगा। तो अगर इधर 60 चल रहा है तो इधर भी 60 चलेगा, तो 120 मिनट में ये फिल होगा, सीधा सीधा होगा। यस सही है। सो इस हिसाब के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलेंगे थोड़े थोड़े हटके क्वेश्चन के ऊपर, देखता हूँ आपका सॉल्व होता है क्या। बस ये कंसेप्ट तो डील हुआ ना कैसे वर्क करता। यस यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 टैप्स A and B can fill a tank in 48 and 36 minutes, ठीक है, respectively. Same question. If both the taps open together, if both the taps open together, ठीक है, after how much time tap A must be closed, after how much time tap A must be closed so that the whole tank will fill in 25.5 मिनट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा है, जनरली जास्त इंटरनेट पे है क्वेश्चन। चलो अब हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। दोनों एक साथ स्टार्ट किए और कितने टाइम के बाद ए क्लोज होगा या बी क्लोज होगा, जो भी यहाँ पे जो भी लिखा है उसके हिसाब से। तो पूरा टैंक, ये टाइम एंड वर्क में अपने क्वेश्चन पढ़ा है, तो पूरा टैंक 25.5 मिनट में क्या होगा, फिल होगा। इसका मतलब ए तो चला गया बीच में, बी कंप्लीट इतने टाइम के लिए, तो बी की इफिशिएंसी आपको पता है, तो मल्टीप्लाई करके कितना टाइम कितना वर्क हुआ निकालो, तो बचा हुआ ए को ए के पास दे दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो एक बार ट्राई करो टाइम एंड वर्क के हिसाब से।
सॉल्व करो पूरा। इजी है, एलसीएम तो आपको आ जाता। अब ये कैपेसिटी में लिख रहा हूँ 144 लीटर, ये तो आएगा, ये सबको है पता, ठीक है। वन 144 लीटर्स कैपेसिटी है। इफिशियंसी बताओ, इफिशियंसी ए की इफिशियंसी बताओ। 4 and 3. करेक्ट है, 4 लीटर एंड 3 लीटर बी की इफिशियंसी पर मिनट। हाँ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बोथ द टैप्स आर ओपन बोला है। बोथ द टैप्स आर ओपन मतलब दोनों को ऐड कर दिया। अगर दोनों चलेंगे तो कितना वर्क होगा बोलो, दोनों चलेंगे तो। हाँ 7 लीटर सही है, हाँ 7 लीटर पर मिनट। हाँ क्योंकि दोनों भी फिलर है तो एडिशन होगी। एक मिनट में 7 लीटर भर जाएंगे, ठीक है। बाद में क्या बोला देखो, दोनों एक साथ काम कर। टाइम टैप ए मस्ट बी क्लोज, ए क्लोज करेंगे कुछ तो टाइम के बाद, ए क्लोज करेंगे सो दैट टैंक विल फिल इन 25.5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, कौन चला गया बीच में, ए चला गया, तो पूरा टाइम होल टाइम के लिए कौन रहेगा वहां पे बोलो, पूरे टाइम के लिए कौन रहेगा वहां पे। बी हाँ सही, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरे टाइम के लिए बी रहेगा, बी रहेगा वहां पे, बी रहना ही रहना है वहां पे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इतना टाइम वो है फील्ड पर और उसकी इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 3 हाँ, तो 3 लीटर 1 मिनट में वो भरता है और टोटल इतना टाइम उसके पास है। तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे कितना काम करेगा वो, तो 25.5 मिनट में 3 के हिसाब से, 3 की इफिशियंसी से कितना काम करेगा देखो, मल्टीप्लाई कराइए इन दोनों को। इतने टाइम के लिए बी रहा है, बी है इसलिए बी की इफिशियंसी यहाँ पे लिखी, बी की इफिशियंसी क्या है 3। तो कितना काम हुआ देखो, 25.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 76.5. 76.5, ठीक है। लिख रहा हूँ एक मिनट। सेवेंटी 6.5 लीटर काम हुआ। ये कैसा है यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट। 25 3 75 प्लस हाफ ऑफ 3 इज 1.5, सो 176.5 लीटर काम फिनिश हो गया, इतना काम फिनिश हो गया। यहाँ तक ठीक है, मतलब बी ने अपना काम कर दिया। तो कितना काम बचा है बोलो, 67.5 सही। सो आप क्या करेंगे, 144 में से 76.5 माइनस करेंगे तो ये चलेगा, यहाँ पे 0 है, मैं लिख रहा हूँ सब चीजें। 0.5 आएगा यहाँ पे 3 बचा, 3 से 6 नहीं जाता, एक यहाँ पे चला गया। सो 7 आ गए यहाँ पे 13 में से 3, 77.5 लीटर काम बचा। सही है ना, 77 सही है, ओके। तो ये काम कौन करेगा बोलो, ए बी तो पूरे, हाँ तो ये ए के पास चलेगा, तो बस ए से डिवाइड करो। सर ये ए और बी दोनों नहीं करेंगे? नहीं, बी ने तो पूरा कर लिया ना। ये जो बी पर्सन है ये ना, तो लिखा हुआ है ना, ये इसमें इफ बोथ द हाँ, टैप्स ओपन टुगेदर आफ्टर सही हाउ है ना। मेनी टाइम टैप ए मस्ट बी क्लोज सो दैट द होल वर्क विल बी अच्छा। यस यस, तो आप क्या कर रहे हैं देखो, ये होल वर्क इतना है, तो ये बी के पास दे दिया ना मैंने, मतलब भले वो टुगेदर काम करे लेकिन बी का जितना टाइम है उतना ही टाइम बी करेगा। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना ही टाइम है, आपको पता है, तो बी का तो पूरा काम हो गया है ना, समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, वो वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे लूंगा। हाँ, तो बी ने पूरा टाइम काम किया, तो पूरे टाइम का बी का काम हो गया, मतलब ये ए एंड बी के पास तो नहीं चले जाएंगे, ये काम खाली ए के पास ही जाएगा।
तो ए से डिवाइड करो, तो ए से डिवाइड करो तो कितना टाइम आएगा देखो। मैंने ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आपने थोड़ा सा ये गलत किया, ये इफिशिएंसी इंटरचेंज हो गई देखो। ए की इफिशिएंसी 3 आनी चाहिए, बी की 4 आनी चाहिए, सही है ना। मैं ये वैल्यू इंटरचेंज करता, हाँ ये इंटरचेंज करता, ये सिली मिस्टेक है आपकी, ये मैंने भी नोटिस नहीं की, बाद में नोटिस करा। तो ये ऐसे आएगा तो ये सही है फिर, हाँ हाँ अब सही है, सही है ना। चलो आंसर क्या है बोलो। 77.5 को डिवाइड करना है 4 से, कितना टाइम आया। 67 सर, 67। हाँ 60, ये इधर 67 आ रहा है क्या, यस सर, 67 है क्या ये, यस। यस। एक मिनट में ये गलत किया, 67.5। अब देखो क्या आता फिर, कितना टाइम आएगा फिर। एक के पास गया तो ए से डिवाइड करना है 4 लीटर से। 33 4 1 4, 4 6 24, 3 बचा, 4 8 32, फिर 3 बचा, 4 7 मतलब इतना टाइम अप्रोक्सीमेटली, हाँ अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट, अप्रोक्सीमेटली क्या रखेंगे आप, 17 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कुछ प्रॉब्लम है आपका, कंफ्यूजन शायद यहाँ पे होगा कि सर बी है तो ये इतना काम दोनों स्टार्ट से दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों स्टार्ट ए प्लस बी के पास जाना चाहिए, नहीं है। बी ने अपना काम पूरा काम किया पूरे टाइम के लिए, मतलब बचा हुआ काम ए ही करेगा, मतलब इतने इतने मिनट के बाद ए क्लोज होना चाहिए, 17 मिनट के बाद, या फिर 17 मिनट काम ए ने किया। समझ में आया ये। यस सर। अब आप तुम्हारा कंसेप्ट लेंगे, ठीक है कि सर अगर ये दोनों कब आएंगे, अगर आफ्टर की बिफोर की जगह, अगर आप ये आफ्टर की जगह बिफोर वर्क आएगा ना, तब ये चलेगा कंसेप्ट ए और बी के पास। देखता हूँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो आपको आता है। देखो यहाँ पे लिखो, बोथ आर फिलिंग, यहाँ पे बस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 18 एंड 24 आवर्स, 18 एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं 18 एंड 24 आवर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, इफ बोथ द टैप्स, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, ठीक है साइमल्टेनियसली ओपन किए, if both the taps are open simultaneously but before 6 minutes, but before 6 minutes the system fill, before the 6th minute the system fill tap A is closed, tap A is closed। so क्वेश्चन में देखो ठीक से, पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आफ्टर दिस मच टाइम टैप ए इज क्लोज, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बिफोर 6 मिनट द सिस्टम फिल, मतलब जो भी सिस्टम है हमारा वो फिल करने के पहले 6 मिनट पहले ए क्लोज किया, तो कितना टाइम लगेगा। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन 17 मिनट जो आया, 17 मिनट में, 17 मिनट के बाद ए टैप बंद हो गया है। हाँ 17 मिनट के बाद में ए टैप बंद हो गया, या फिर ऐसा बोलो कि 17 मिनट के लिए ए ने ए काम किया बस 17 मिनट, ऐसा। ओके ओके। in how much time tank will fill। ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि टैंक भरने के 6 मिनट पहले ए क्लोज हुआ, इसका मतलब लास्ट के 6 मिनट बी काम कर रहा है, और पहला टाइम स्टार्टिंग से लेकर 6 मिनट पहले के टाइम दोनों से एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखो एक बार ठीक से क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, आएगा।
both the tabs are open simultaneously, but before 6 minutes the system will feel tab A is closed. ठीक, that means for last 6 minutes only B tank will open. सही है ना, for last 6 minutes only B tap will work. तो पहला काम कौन करेंगे, दोनों एक साथ। चलो एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 क्या आएगा बोलो। 72. हाँ 72 आया, ये हो गया, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया 72 आ गए, ये तो चला 72 लीटर है मेरे पास। चलो इफिशियंसी निकालो दोनों की। ए की इफिशियंसी 72/18, बी की इफिशियंसी 72/24। हाँ 4 लीटर 3 लीटर, सही है, ये दोनों भी फिलर है प्लस प्लस। अब कैसे करेंगे सलोनी आप बताओ, ये वाला स्टेटमेंट आप कैसे जज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों एक साथ काम कर रहे और बिफोर 6 मिनट ए इज क्लोज। बिफोर 6 मिनट, कौन सा बिफोर 6 मिनट, द सिस्टम विल फिल, सिस्टम भरने के 6 मिनट पहले ए क्लोज किया। सर क्या अपन पहले करेंगे बी का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी को कितना टाइम यस लग रहा तो यस तो आप क्या करेंगे, एकदम एकदम खोलेंगे। अगर 6 मिनट पहले ए बंद कर रहा है, इसका मतलब लास्ट 6 मिनट के लिए, लास्ट 6 मिनट के लिए, लास्ट के 6 मिनट, ठीक है ना, लास्ट के 6 मिनट के लिए बी वर्क करेगा, बी वर्क करेगा। क्यों बी वर्क करेगा, क्योंकि ए तो लेफ्ट, ए तो क्लोज है, तो बी की इफिशियंसी क्या है लास्ट 6 मिनट की, 6 इंटू बी, बी कितना है बी, ये बी और 6 है इसलिए 6 3 जा, सो कितने लीटर भर गए, 18 लीटर भरा, 18 लीटर भरेगा, 18 लीटर भरेगा लास्ट 6 मिनट में, लास्ट 6 मिनट में। तो अब यश आप बताओ, लास्ट 6 मिनट के लिए अगर खाली बी वर्क कर रहा है, लास्ट 6 मिनट के लिए, पिछले एग्जांपल में क्या था, पूरे टाइम के लिए कर रहा था, इसलिए बचा हुआ टाइम ए के पास चला गया। यहाँ पे किसके पास जाएगा बचा हुआ काम, ए के पास या ए एंड बी के पास, हाँ दोनों के पास चलेगा, क्योंकि लास्ट 6 मिनट के लिए बी, इसका मतलब पहले दोनों एक साथ काम कर रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, रिमेनिंग वर्क क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क 72 में से 18 चला गया, कितने बचे बोलो, 54. हाँ 54 लीटर बचा हुआ काम है, लास्ट के लिए बी था, इसका मतलब ये दोनों के पास चला गया। हाँ, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि पूरे टाइम के लिए अगर वो काम कर रहा है बी, तो रिमेनिंग वर्क खाली एक के पास चला जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए काम कर रहा है लास्ट के 6 मिनट, तो बचा हुआ काम दोनों एक साथ कर रहे थे। तो चलो 54 को किससे डिवाइड करेंगे फिर, 7. ए एंड बी, 7 से, 54/7 क्या आता देखो, सेवन 7 जा 49, सही है, Yes, बचे yes. कितने 5। हाँ तो यहाँ पे टोटल टाइम बोला है, इन हाउ मच टाइम, तो ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन जो है ना रिमेनिंग के लिए, टोटल टाइम आपको पूछा है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये 6 मिनट लास्ट के, और ये वाले 7 5/7 मिनट, तो टोटल टाइम आएगा 13 5/7 मिनट, सही है। दोनों ऐड करिए, 6 + 13 और एक्स्ट्रा ये वाले 13 5/7 मिनट। थोड़ी दिक्कत आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे ऐड होते हैं, सीधा यहाँ पे मैं बताता हूँ, 6 + 7 + 5/7, और ये a + b + c, इसका ही मतलब होता है ab/c, इसलिए ये पहले ऐड किया और बाद में ये ऐसे लिखा जाता है, याद रखो। ठीक है ना, Yes, sir. समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा
अब एक सॉल्व करो, एक आप सॉल्व करो, यही सेम। यहाँ पे ना मैं 4 मिनट बिफोर बी क्लोज लिखता, बी क्लोज। अब सॉल्व करो, आप बी क्लोज किया तो क्या होगा, 4 मिनट बिफोर। यहाँ पे नंबर्स थोड़े अलग लेता, 18 एंड 30 लिखो। 18 एंड 30 आवर्स, मिनट्स में। आवर दिया तब भी चलेगा, लेकिन मिनट लिखो पहले। तो बिफोर आफ्टर में ना थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। आफ्टर मतलब उतना काम वो कर रहे हैं, बिफोर मतलब उतना टाइम बचा है, उतना टाइम, उतना वर्क बचा है, जो भी छोड़ के चला जाएगा उसका। क्या आंसर? क्या दिया यहाँ पे, बिफोर 4 मिनट बी क्लोज, मतलब टैंक भरने के 4 मिनट पहले बी क्लोज हुआ, तो लास्ट 4 मिनट बचेंगे ना, 4 मिनट बचेंगे। लास्ट 4 मिनट में ए काम करेगा। तो 4 इंटू 5, 20 लीटर खत्म हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 90 बाई 20, ठीक है ना, 70 लीटर। लास्ट के 4 मिनट ए काम करेगा, इसका मतलब उसके पहले दोनों मिलके काम कर रहे थे, इसलिए ए एंड बी से डिवाइड करना उसको। तो 70/8 मेरा आंसर आएगा। यस सर। हाँ, तो ये सॉल्व करो, ये बचेगा 4, ये चलेगा 35, 4 का टेबल लिया 32, 3, इतना टाइम 8, 3/4 मिनट। समझ में आया यश आपको कैलकुलेशन? यस सर। हाँ, मैं 2 से डिवाइड किया, फिर 35/4 का कैलकुलेशन लिखा इधर। और पूरा टाइम ये दोनों का एडिशन, पूरा टाइम कंप्लीट टाइम निकालना है, रिमेनिंग के लिए इतना। तो पूरा कितना बचेगा, 12, 3/4, यस 12, 3/4, ये 4 मिनट और ये इसके एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, टू टैप्स A and B can fill a tank in 1 hour and 75 minutes respectively. Next, there is an outlet
आउटलेट मतलब वो निगेटिव वर्क कर रहा है, आउटलेट पाइप सी फुल स्टॉप लेफ्ट, इफ all the taps if all the taps are open if all the taps are open, tank gets filled in 50 minutes. So how much time will be taken by C tap to empty completely filled tank? अगर खाली सी टैप चालू करेंगे तो पूरा भरा हुआ टैंक कितने टाइम में क्या होगा, एम्प्टी होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तीनों एक साथ काम करेंगे तो 50 मिनट में फिल हो रहा है। सॉल्व करो। अगर खाली ए काम करेगा तो 1 आवर ले रहा है, बी काम करेगा तो 75 मिनट ले रहा है फिल करने के लिए, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तीनों एक साथ, इसका मतलब सी टैप भी चालू है उसमें, तो 50 मिनट। तो एलसीएम किसका निकालोगे आप बोलो, एलसीएम किसका निकालोगे आप बोलो? सर 60 या 75? यस हाँ, 60, 75 और ये वाला 50 मिनट ये भी आएगा अंदर। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ काम करेंगे तो गेट्स फिल्ड बोला है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये सर ये समझ में नहीं आया, आउटलेट है उससे कैसे पता चलेगी कैपेसिटी कितनी है सर? हाँ तो वही ना, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये अकेला काम कर रहा है ए, यहाँ पे बी अकेला काम कर रहा है, और इस स्टेटमेंट में ना तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो सी की इफिशियंसी मिल जाएगी। समझ में? यहाँ पे तीनों है ना। हाँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो 1 आवर मतलब 60 मिनट, 75 मिनट और ये 50 मिनट है, 50 है। ये तीनों की क्या करूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा तीनों का। खाली इन दोनों का एलसीएम निकाला तो गलत हो जाएगा। कभी कभार सही भी आएगा अगर ये मल्टीपल में होंगे सभी। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, फील्ड हो रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम में आएगा। चलो एलसीएम निकालो, 5 से डिवाइड करो। फिर 5 से डिवाइड करो। ट्वेल्व एज इट इज, डिवाइड नहीं होता। फिर 3 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो। ये 2 बचा हुआ, 2 से डिवाइड देखो आएगा कि नहीं। कैपेसिटी हमारी 300 हो रही है यहाँ पे, सही है? यस सर। 300 कैपेसिटी है। ये हो गया 15, 30 और 10 300 लीटर कैपेसिटी। चलो इफिशियंसी निकालो। अब इफिशियंसी कैसे है, देखो ये जो नंबर है ए का नंबर है, ये नंबर है बी का नंबर है, और ये 50 किसका नंबर है बोलो? सी का। सी का नहीं, सर ये था ए प्लस बी और सी का। हाँ ए प्लस बी और जो सी भी है उसमें, लेकिन सी आउटलेट है तो ये ए प्लस बी प्लस सी का है। माइनस यहाँ पे नहीं लिखना, माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है। तीनों एक साथ है, ए प्लस बी प्लस सी का। यस यस। तो चलो इस हिसाब से इफिशियंसी निकालो सबकी। हम ऐसे लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू -3 या c इज इक्वल टू -5, तो इस साइड माइनस नहीं लिखते हम, इधर आ जाता माइनस, ऑटोमेटिक आता होगा। हाँ चलो 60 को, सॉरी 300 को 60 से डिवाइड कीजिए, 300/60 तो मिलेगा हमें a। 300/75 करेंगे तो मिलेगा हमें b,
और 300 अपॉन 75 करेंगे तो होगा बी। 300 अपॉन 50 करेंगे तो क्या लिखेंगे आप बोलो? 300 by 50, 546. सही है, सही है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी। अगर 50 से डिवाइड करेंगे, 50 इज रिलेटेड टू ऑल, तो चलो ये कितना आएगा बोलो? 300 बाय 6, 5, सही है। यस सर 5 5 लीटर 4 इधर, 4 लीटर, 4 सही है। हाँ, यहाँ पे ए एंड बी मिल गए, तो यहाँ पे ए एंड बी, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 लीटर आएगा। तो अब क्या करेंगे देखो, ए की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, बी की वैल्यू भी इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा 5 प्लस 4, और सी मुझे पता नहीं, तो सी एज इट इज लिखो, और इधर सॉल्व करके कितना आया? 6 आया। चलो सी की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू कितनी आ गई? सही, 3 प्लस 3 और माइनस 3, -3. तो ये यहाँ से पता चलता है कि वो एम्प्टी है। 9 प्लस सी, ये तो है एज इट इज, और इधर 6 है, ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, 6 माइनस 3, सो -3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अब ये -3 लीटर को से क्या करेगा? एम्प्टी करेगा। किसको एम्प्टी करेगा? फील्ड टैंक। फील्ड कितना है? 300, तो 300 को डिवाइड करो -3 से, कितना मिनट लगेगा देखो। ये इस हिसाब से, इस, हाँ 100 मिनट। ये वाली इफिशिएंसी यूज करनी है मेरे को, किसके लिए यूज करनी है? ये 300 लीटर एम्प्टी करने के लिए। सो आंसर मेरा आएगा, टाइम चाहिए ना मेरे को, टाइम, सो 300 अपॉन 3 -100 मिनट, इसका मतलब एम्प्टी कर रहा है वो, एम्प्टी। अब इधर माइनस नहीं लिखा तब भी चलता है, क्योंकि आपको पता वो एम्प्टी कर रहा है। सही है? यस हाँ ठीक। अब नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट। अब थोड़ा इजी, यहाँ पे जो दिया है वो थोड़े इजी करेंगे, क्योंकि आपके थोड़े इजी आ जाते क्वेश्चन। इजी से थोड़ा टफ कल करेंगे। चलो, एन आउटलेट टैप कैन एम्प्टी a cistern इन 5 आवर। ठीक है, सीधा दिया है 5 आवर में एम्प्टी करता है। बाद में अब वो दिया है, इन व्हाट टाइम विल एम्प्टी 2/5 पार्ट ऑफ द सिस्टम। यस, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, एक ही टैप दिया है, 5 घंटे में खाली कर रहा है पूरा सिस्टम, तो 2/5 पार्ट के लिए कितना टाइम लेगा? बस ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 टैप नहीं है, एक ही टैप है। अगेन बेसिक, कितना आएगा देखो, आना चाहिए आपको। कुछ है क्या? कैपेसिटी क्या है? हाँ, एक सिस्टम, तो यहाँ पे मैं चेन रूल यूज कर रहा हूँ, एक के लिए ना 5 घंटे ले रहा हूँ मैं, क्या सर? तो 2/5 के लिए कितना लूंगा, कितना टाइम लूंगा? सर जैसे इधर एलसीएम यूज कर सकते हैं।
क्या आएगा बोलो? एक सिस्टम के लिए 5 घंटे, 2 आवर्स, सही है, 2 आवर्स, 2 आवर आएगा आंसर। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू क्वेश्चन मार्क 2/5 इंटू 5, ये 2/5 एज इट इज इधर चला जाएगा, नहीं उल्टा नहीं करना इसको, एज इट इज चला जा रहा है, बस शिफ्ट हो रहा है ना कि ट्रांसपोज। 5 कैंसिल, सो अपना आंसर आएगा 2 आवर्स। ठीक है ना, कभी कभार ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बस चेन रूल यूज करना, चेन रूल। एक ही टैप है, एक ही सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट ले लो। क्वेश्चन है 2 टैप्स, शॉर्टकट में लिखो आप, ज्यादा ये मत करो। 2 टैप्स A and B are open together to fill a tank. Okay, to fill a tank. बाद में क्या देखा देखो, A separately takes 4 minutes more time than both the pipes together, while B separately takes 64 minutes more time than both the taps together. Then find time taken by both the taps together. क्या आएगा? ये पढ़ा आपने, हमने टाइम एंड वर्क में। यस, क्या बताया था मैंने, बोलो। A and B टुगेदर कितना टाइम ले रहे हैं? उससे ज्यादा। ए कितना ले रहा है? 4 मिनट ज्यादा, और बी कितना ले रहा है? 64 मिनट ज्यादा। तो क्या करेंगे हम? ये टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एंड बी की वैल्यू बोलो। यस, बताया था। अगर समझो ए एंड बी को ना टी टाइम लग रहा है, तो टी से 4 मिनट ज्यादा ए को लग रहा है, टी से 64 मिनट ज्यादा बी को लग रहा है। तो ये टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, अंडर रूट वाला कंसेप्ट बताया था ना? यस सर। हाँ, अंडर रूट सिंपली 4 इंटू 64 करना। अंडर रूट 4 इंटू 64 क्या आएगा देखो। ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2। 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 8। 16 मिनट लगेंगे, सही है। सो दोनों को ना 16 मिनट लगेंगे, दोनों को 16 मिनट लगेंगे। ए को 20 मिनट, बी को ज्यादा मिनट लगेंगे, 80 मिनट लगेंगे। तो ये दोनों को है, ए एंड बी को। ए को लगेंगे 16 + 4 20 मिनट, और बी को 16 + 64 80 मिनट। ये चीज याद रखना, भूलना मत, बहुत बार ये सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ। बस मैंने ऐसे ही देखा कि आपको याद है कि नहीं। तो बहुत सारे कंसेप्ट है ना टाइम एंड वर्क के, इसमें आते हैं बहुत सारे सभी। तो ये कंसेप्ट याद कैसे रहेंगे इनके साथ? यही ना, मतलब हाँ देखो यहाँ पे देखो, वहाँ पे वर्क क्या था? कुछ भी रहेगा वर्क। यहाँ पे वर्क क्या है? टैंक है, बस उतना ही फर्क है। बाकी मैथ्स में नंबर चल रहे हैं ना, कि ये काम 16 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, ये 16 मिनट में वो इसको भर रहा है। मतलब क्या भर रहा है? मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क
एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये दोनों सेम है, इसलिए वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट सेम ही है, दोनों की जगह एलसीएम है। दोनों जगह एलसीएम चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट ले लो, यहाँ पे देखो पाइप ए is 3 times slower than pipe B. Regular question है, pipe A is 3 times slower than pipe B and takes 16 minute more time, 16 minute more time than pipe B. सही है ना, क्योंकि स्लो है मतलब ज्यादा टाइम लेगा, और कितना टाइम दिया है, 16 मिनट टाइम दिया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है हाउ मच टाइम, इजी क्वेश्चन है ये, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे याद रखना। हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल द टैंक। सभी कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सब क्वेश्चन कैसे कंसेप्ट बिल्डर है। या करो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो करो, देखो एक बार आता कि नहीं। 3 times slower, ये एफिशिएंसी दी है आपको। स्लोअर देन फास्टर देन, ये एफिशिएंसी रहती है ना, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो पाइप ए एंड पाइप बी। यस, अब बोलो, ये स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, एफिशिएंसी, और अगला स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, टाइम, ठीक है ना। यस तो पहले आप एफिशिएंसी लिखो। हाँ, ये पाइप ए इज 3 times स्लोअर देन पाइप बी, ये स्लोअर मतलब क्या, एफिशिएंसी है, मतलब तो रेशियो क्या आएगा बोलो, 1:3। 1:3 आएगा। ओके, और एफिशिएंसी 3। हाँ, किसकी एफिशिएंसी कम है, अगर ए 3 times स्लोअर देन बी, चलो ठीक है, ए की एफिशिएंसी कम है ना सर। हाँ, ए की एफिशिएंसी कम है, स्लोअर बोला है, तो 3 किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, 3 A की तरफ आएगा। हाँ बी की तरफ आएगा, और ये इधर आएगा। हो गया, आप देखो सर 3 मैंने times भी यही slower, बताया था। हाँ यस यस यस, सो 1:3 आ गया। अब टाइम क्या होता बोलो, टाइम क्या होता है, इंटरचेंज, तो 3 इधर चलाएगा, 1 इधर चलेगा, तो ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, ये तो लिख दे। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, टेक्स 16 मिनट, ये मोर में थोड़ा सा भूल जाता, ये नहीं दिया है, समझो, टेक्स 16 मिनट टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मोर बोला है। मोर मतलब सब्सट्रैक्शन एडिशन का साइन देता है ये। अब यहाँ पे देखो, ए को कितना टाइम दिया पहले, 3 यूनिट्स, 3। बी को कितना टाइम दिया, 1 यूनिट, तो कितना ज्यादा ले लिया यहाँ पे बोलो, कितना ज्यादा ले लिया, 3 और 1। 3। हाँ यस, सो यहाँ पे ना सब्सट्रैक्शन करना, कब भी मोर लेस ऐसे वर्ड आते ना, सो 2 मोर यहाँ पे है, 2 ज्यादा है यहाँ पे, 2 मोर है, और यहाँ पे है 16 मोर, सो ये दोनों करस्पॉन्ड्स में हो गए। यहाँ पे देखो ना, टाइम टेकन बाय ए इज 3, टाइम टेकन बाय बी इज 1। अब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दे देना, ए टेक्स 2 मोर
देन बी। सो यहाँ पे क्या है, ए टेक्स 16 मोर देन बी। तो यहाँ पे लिखना मेरे को 2 मतलब 16। 2 कैसे आया, समझ में आया? यहाँ पे 2 क्यों लिया सलोनी, आप बोलो 2 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 का डिस्टेंस सब्सट्रैक्शन क्यों किया? हाँ, क्योंकि वहां पे दिया है कि ए टेक्स 16 मिनट मोर टाइम देन बी, और यहाँ पे देखो ए टेक्स 3 टाइम, बी टेक्स 1 टाइम, दैट मीन्स ए टेक्स 2 मोर टाइम देन बी। सही है। सो यहाँ पे ना 2 मतलब क्या है, 2 मतलब है 16। सो यहाँ पे लिखा मैंने 2 मतलब 16 मिनट, 2 मतलब 16 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक। तो बी को कितना टाइम लगेगा, सो बी को कितना टाइम है, देखो टाइम फॉर बी कितना है, 48 हाँ 1 मिनट। मतलब हाँ, बी के अंदर 1 लिखा है ना। ए को पूछा होता तो 48 लिखते हैं। 1 मतलब कितना, 24 आता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर देखो। 8 8 मिनट आएगा। समझो अगर ये आपको नहीं आ रहा सर, हमको ना थोड़ा रेगुलर वे बताओ, पहले मैं रेगुलर वे बताता। देखो ए टेक्स 3 टाइम्स स्लोअर देन बी, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देकर देखो, यहाँ पे टाइम, बी का टाइम लिख रहा हूँ मैं, बी का टाइम मैंने एक्स ले लिया, तो ए का टाइम कितना होगा बोलो, ए का टाइम 3x। सही है, कुछ प्रॉब्लम है? नो बी सर का टाइम मैंने x मिनट ले लिया और a का टाइम 3 मिनट है। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया, 3x माइनस एक्स, तो वो कितना आ रहा है देखो, 2x 16। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू 8 मिनट। अभी x किसका टाइम है, b का टाइम है 8 मिनट, और 3x किसका टाइम है, a का टाइम है, तो 24 आएगा। तो यहाँ ये भी चलेगा अगर आपको ये समझ में आता है। ठीक है ना? यस यस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेता है एक्सरसाइज को इरेज मत करना। यस, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, पाइप ए इज 2 टाइम्स स्लोअर देन पाइप बी and takes 9 minutes more than B. Find time taken by A. चलो ये सॉल्व करो, ये वाला कंसेप्ट यूज करो, ये थोड़ा इजी है इफिशिएंसी से। मोर लेस, जो भी ऐसे जितने भी वर्ड आएंगे ना, तो वो हमेशा सब्सट्रैक्शन का इक्वेशन देते हैं। क्या है आंसर? सही है, 18 सही है। ये आपका बोलो। A is 2 times स्लोअर, मतलब ज्यादा टाइम, 2 टाइम ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे B की वैल्यू x लेना, A की वैल्यू 2x लेना, ये दोनों टाइम है, टाइम का सब्सट्रैक्शन है। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, तो x मतलब कितना आया, 9 मिनट। यस सर 18 मिनट। तो यस, सो B 9 मिनट लेगा, A 18 मिनट लेगा। सही है, ठीक है। इसकी ना थोड़ी डिफिकल्टी कल पढ़ाएंगे, और ये कल टॉपिक फिनिश करेंगे, फिर मूव करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की।
ठीक है ना, कल ये फिनिश करेंगे। Okay. हाँ ठीक। सर टुमारो एट 3 ना? हाँ एट 3 to 6, 3 to 5:36 Yes. जो भी। ओके ओके सर। यस यस। थैंक यू। टाइम डिस्टेंस को ना एक आध संडे दूंगा, पूरा टाइम Okay, sir. डिस्टेंस एक संडे। हाँ ठीक है। ओके सर। यस।